Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So in this video I will discuss about oscillation. Okay, so exam of your semester is ज़्यादा देर नहीं है. So in this channel I will basically discuss every chapter in one short video, and I think it will help in your exam. And definitely I will discuss it completely on suggestion based. So let's start with the chapter oscillation. Okay, so uh, definitely we'll start with basic concept of oscillation. In this basic concept, what we will have, we will have basically the definition of oscillation. We will have definition of oscillation and a normal case of oscillation, that is simple harmonic motion. So I think you all know, although I'll discuss a little bit about the definition of oscillation, that is what is oscillation. So oscillation is basically a periodical motion. Oscillation is basically a periodical motion, and it definitely has an time period. Okay, time period and frequency. So what is oscillation? Oscillation is a periodical motion, you can say. Okay, oscillation is a periodical motion, and the most easy example of oscillation is a simple harmonic motion. And you need to know that what is this simple harmonic motion. So simple harmonic motion is a kind of motion where the acceleration of the particle is directly proportional with the displacement. Okay, acceleration of the particle is directly proportional with displacement and in opposite direction. So इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू टेक a spring mass system, this is a spring mass system, and definitely it has a mass, and we consider this spring is a massless spring with spring constant k. Then if we elongate this spring with a small displacement x, okay, with a small displacement x, then when it is released, then we will have an oscillation. Okay, a back and forth motion of this mass. And if you observe it keenly, then you can conclude that when we elongate this spring, then a restoring force in this spring is generated. Okay, मतलब एक restoring force generate होगा इस spring में, and this restoring force is in opposite direction. And at first you need to know that what is restoring force. So restoring force क्या होता है? जो स्प्रिंग को अपना शेप रिस्टोर करने में हेल्प करता है. ओके, सो यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया विथ a small displacement x, then we will have an restoring force, and this restoring force must be in opposite direction of the displacement. Okay, यहाँ पे displacement तो इस direction में है. ओके, एंड डेफिनेटली ये जो फोर्स, ये रेस्टोरिंग जो फोर्स होगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट में होगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्प्लेसमेंट एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. सो दिस मस्ट हैव f is equal to minus kx, and you know that is what is k is k is the spring constant. And from this it is very easy to conclude that mass into acceleration, this is equal to minus k into x, and a is equal to minus k by m into x. And here this k by m is represented as omega square. Okay, you need to know that is what is omega square. This omega square is the angular frequency of the motion. And this motion is simple harmonic motion. So the kind of motion for which acceleration is directly proportional with displacement, as you can conclude from this equation number 1. Okay, here it is very easily you can conclude that acceleration is directly proportional with displacement but in opposite direction, and this opposite direction is signified by this negative sign. Okay, from this negative sign you can conclude that acceleration is definitely in opposite direction of the displacement. So if you want to draw a graph between acceleration and displacement, then
you will have this kind of graph. Okay, definitely it is y is equal to mx and the slope is negative here. So this is theta. Okay, this is theta, and here tan theta is equal to omega square and omega naught square. Okay, and you need to know that this omega naught is equal to root over k by m, and from this you will get the time period of the motion, that is 2 pi by omega naught, and this is equal to 2 pi root over m by k, 2 pi root over m by k. And another thing is that omega naught is also equal to root over a by x. Okay, omega naught is also equal to root over a by x. So the ratio of linear acceleration and the linear displacement, the square root of the ratio of linear acceleration and linear displacement, is also angular frequency of the motion, angular frequency of the motion. So you can also say that 2 pi root over x by a, that is linear displacement divided by linear displacement divided by linear acceleration, is called time period of the motion. So in a numerical, if a numerical in your exam, a numerical is given and it is asked to find the time period of the motion, then you will have two different way to solve it. That is, you can find that k by m, where k is the force constant of the spring and m is the mass. And if the system is not a spring mass system, something else, okay, if you consider something else, then you only have the ratio of acceleration and displacement. So in this case, you can solve the problem in this way. Okay, so I think it is clear to you, that is that what is simple harmonic motion and the formula of time period. Now from equation number 1 you can also find from equation number 1 you can also find the differential equation of the simple harmonic motion. So equation number 1 is given in this way, that is a is equal to minus omega naught square into x, and a is the double differentiation of displacement is equal to minus omega naught square x, and if you take a side change, then you will have that d square x dt square plus omega naught square x is equal to 0. So this is the differential equation of simple harmonic motion. And now you need to know the solution of this differential equation, and before that you need to know about a special characteristics of simple harmonic motion. Actually, simple harmonic motion is a special kind of circular motion. How? It is a very important question for your semester, that simple harmonic motion is a special kind of circular motion. Okay, so let us consider a circular motion in this way. Okay, and this is the center. Just a minute, this is the center, and this is the particle. Take another color यहाँ पे, और कलर से मैं रीड करता हूँ, येलो कलर आई थिंक इट इज विजिबल टू यू. दिस इज द पार्टिकल, ओके, जो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक, जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है. ओके, सो इफ इट इज रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन एट टाइम t the angle between at the center become omega t. Definitely the angle between the center is omega t. So now if we draw the projection here, okay, then this is OA, okay, and this is D. Then from ODA triangle, you will have x is equal to OA. Let us consider OA is equal to capital A. Okay, OA is equal to capital A. Just a minute. OA is equal to capital A. So x is equal to A cos omega t.
x is equal to a cos omega t. Okay. Similarly, if you draw the projection in y-axis, if you draw the projection in y-axis, then this OP, okay, this OP is equal to y, and this y is equal to a sin omega t. And अगर तुम लोग यहाँ पे जरा ध्यान से सोचो, then ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक प्रोजेक्शन आएगा, y एक्सिस में भी आएगा, x एक्सिस में आएगा, कोई भी प्रोजेक्शन ले लो। ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर मूव करेगा। ओके, यहाँ पे जब आएगा ये पार्टिकल, यहाँ पे जब आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब आएगा, उसके बाद यहाँ पे जब आएगा प्रोजेक्शन फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब आएगा फिर सेंटर में प्रोजेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे आने से यहाँ पे प्रोजेक्शन आएगा। सो जो प्रोजेक्शन है ना, ये प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस और यू कैन से अलोंग x एक्सिस, डायमीटर पे ही ये मूव कर रहा है, एंड द मूवमेंट इज ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ओके, यहाँ पे एकदम जो डायमीटर, ये जो डायमीटर है, यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, सर्कमफेरेंस तक जा रहा है ये पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट, again comes to center and go towards the circumference and again comes to center. Okay, so this kind of the motion of this, the motion of the projection, and this motion of the projection must have a time period. So what is the time period? Okay, you know the definition of time period. Time period का definition क्या है? Time period का definition है the time after which the particle comes at initial position. Okay, okay, initial position, that is the time period, or you can say the minimum time difference between same phase of the particle. Okay, so यहाँ पे अगर projection है initially, यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे pi angle होता है। okay, and again ये projection यहाँ से घूमकर इस position में जब आएगा, यहाँ पे जब आएगा, then यहाँ पे another और एक पाई एंगल जाएगा, मतलब यहाँ पे सेंटर में 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट इनिशियल पॉइंट में आएगा। ओके, तो मिनिमम एंगल, ओके, मिनिमम एंगल कितना है यहाँ पे 2 पाई। सो अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, देन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? सेम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में आने में टाइम लग रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। यहाँ पे टाइम कितना है? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। ओके, सो यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल रहा है। सो यहाँ से यू कैन कंक्लूड दैट डेफिनेटली सर्कुलर मोशन, डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ से तुम लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कुलर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो तो तुम्हें मिल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x है, x इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है a sin ओमेगा t। ओके, y लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर ये जो मोशन है, ये मोशन इनिशियली कोई एंगल लेके चलेगा, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस फाई होगा, और यहाँ पे जो फाई है इसको हम बोलेंगे फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट ऑफ द मोशन। ओके, इसको हम बोलेंगे फेज कांस्टेंट ऑफ द मोशन। सो फेज कांस्टेंट एक्चुअली क्या है? यहाँ पे कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर इनिशियली एक एंगल किया हुआ है, देन एट t इज इक्वल टू 0 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम बोलेंगे फाई। मतलब एक सर्कुलर मोशन ले लो, अगेन यहाँ पे देखो, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट ना करके अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करे, तो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 एक एंगल बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो अगर आफ्टर t टाइम इसका जो एंगल यहाँ पे ओमेगा t बनता है, तो यहाँ से a पॉइंट से, जो इनिशियल पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, a पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओमेगा t माइनस फाई होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक फाई एंगल तो किया हुआ था। सो ये a पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट। ओके, स्टैंडर्ड पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट यू कैन से, देन एंगल बिकम ओमेगा t माइनस फाई,
अगर ये पार्टिकल यहाँ पे रहे, फाई यहाँ पे रहे, जस्ट मिनट, ओमेगा टी प्लस फाई होगा, यहाँ पे फाई तो पहले ही है और यहाँ से ओमेगा टी, अगर यहाँ से ओमेगा टी जाएगा तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। और एक बार मैं बोल देता हूं, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम इजी करके दिखा देता हूं। देखो, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है, ये रहा एक सर्कुलर मोशन, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, एंड यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा, इनिशियली यहाँ पे एंगल बना हुआ है फाई, ओके, नाउ यहाँ से ये टी टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लेके यहाँ पे पहुंचेगा, टी टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लेके यहाँ पे पहुंचेगा। सो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी हुआ, ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट बन गया ये ओमेगा टी हुआ, ओके। सो ओमेगा टी होने से अगर यहाँ से हमें पूछे कि ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर ये क्वेश्चन किया जाए, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा क्या, ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। अगर ये पूछे कि यहाँ पे अगर कोई जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल ये रहा सर्कुलर एक सर्कल, यहाँ पे पॉइंट ए है, पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे फाई एंगल किया हुआ है, ओके, फाई पॉजिटिव में है, यहाँ पे फाई पॉजिटिव है, और यहाँ से ये ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी लेके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लेके टी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पहुंचता है। सो यहाँ पे again if it is asked that now the angular displacement from the equilibrium position, तो equilibrium position से angular displacement अब कितना होगा, अब बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, okay, omega t plus phi. So that's why this y may be omega t plus phi or omega t minus phi, okay. So this is the equation of simple harmonic motion, and from this equation यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन y is equal to, सपोज करो y is equal to 0.2 sin pi t minus 0.2 pi, ओके। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से इसका कंपेयर कर दो, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा तुम्हें, a is equal to 0.2, ये रहा एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ से ये पूछे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से कंपेयर कर दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जगह में पाई है, सो पाई है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये पूछे कि इसका लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, ओमेगा बाय 2 पाई करने से तुम्हें मिल जाएगा। सो ओमेगा बाय 2 पाई अगर कर दे यहाँ पे, देन हमें क्या मिलेगा, ओमेगा है पाई, देन दिस इज इक्वल टू 1/2, this become 1/2 second, okay, just a minute, second inverse, okay। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल गया। अगर टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ से 2 पाई बाय ओमेगा कर दो, तो 2 पाई बाय ओमेगा करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पे जो टाइम पीरियड 2, ओके, टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा 2 सेकेंड, एंड you know the relation between linear frequency and time period, that is 1/t is equal to linear frequency। so यहाँ से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो ये, ओके। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नाउ another question is that find the velocity of simple harmonic motion। so velocity निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy dt करना पड़ेगा, वही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर dy dt कर दे, अगर इसी इक्वेशन से हम देखते हैं dy dt करने से हमें क्या मिलेगा, सो यहाँ से देखो dy dt अगर कर दे तो हमें मिल जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस माइनस फाई। अगर इस इक्वेशन से हमें cos का वैल्यू निकालना है, अगर cos का वैल्यू निकालना है, देन हमें क्या मिलेगा, हमें v इज इक्वल टू ये मिल जाएगा, यहाँ से sin इज इक्वल टू y बाई a मिलेगा। अगर sin से cos निकाले, सो cos इज इक्वल टू √1 माइनस
cos इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना। तो यहां से sin निकाल के cos अगर निकाले एंड यहां पे पुट कर दे, देन हमें मिल जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एंड यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से कैसे मिलेगा, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा ओमेगा इनटू a। तो ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। सो यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन a इज इक्वल टू dy dt, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर करने से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो हमें ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर वाई, ये मिलेगा हमारा एक्सेलरेशन। सो if you put the value of y or displacement, okay, then you can find the acceleration of the particle, and you can also find the force on the particle. If it is given that find acceleration of the particle at y is equal to p centimeter or p meter, then acceleration at p become omega square into p, okay, and force become omega square p into mass, okay, omega square p into mass. If it is asked that at y is equal to p meter, find acceleration. Okay, here we just take the magnitude of the acceleration, not the direction. So in this way you can solve a very simple question from simple harmonic motion. Okay, so now हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेलोसिटी मिल गया, वहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकालेंगे। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर काइनेटिक एनर्जी निकाले हम यहाँ से, सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो तुम लोगों को पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर करने से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो यहाँ से 1/2 एम वी स्क्वायर का मतलब यहाँ से ए स्क्वायर, जस्ट मिनट, वी स्क्वायर का मतलब हमें ऑलरेडी तो v का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से एक a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ the potential energy of the simple harmonic motion, you know that potential expression of the potential energy k half k y square, okay, and you know that k is equal to k by m is equal to omega square, k by m is equal to omega square. So k is equal to m into omega square, so this become m into omega square into y square. Now the total energy of the system become kinetic energy plus potential energy, and this is equal to half m omega square a square. Now graphically you can see the variation of kinetic energy and potential energy. So here the total energy of the system is half m omega square a square. This is the total energy E, and if it is displaced from position 0, okay, यहाँ पे देखो y इंक्रीज करने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज करेगा, बिकॉज दिस फॉलोज ए पैराबोला। ओके, सो y इंक्रीज करने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। इस इक्वेशन को फॉलो करो। सो यहाँ पे देखो y इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली फॉलो दिस ग्राफ, ओके, and you will get a point where the kinetic energy and potential energy is equal, and this point is a by root 2, at a by root 2, where a is the amplitude of the particle. Okay, so amplitude का root 2 times displacement होगा, तब kinetic energy and potential energy equal हो जाएगा। Okay, ये तुम लोगों को याद रखना है। And the second thing is that यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा है। ओके, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम पीरियड, एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड बन जाएगा वो टाइम पीरियड यहाँ से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर है, एंड इफ यू पुट द एक्सप्रेशन or you can consider also potential energy। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, एंड यू नो that y is equal to a sin omega t, so m omega square a square sin square omega t, and यहाँ पे जो sin square omega t है ना, ये sin square का
यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, यह साइन स्क्वायर का जो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का जो टाइम पीरियड वो हमारा और 2 पाई नहीं रहेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड बन जाएगा पाई। ओके, साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड है पाई। सो यहाँ पे एनर्जी का टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट से हाफ है, ये तुम लोगों को याद रखना होगा। ओके, सो ये रहा डिफरेंस। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। देखो यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एट इंस्टेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट y का जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड द वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, when its displacement at y is equal to 5 centimeter. Okay, velocity is 5 centimeter, and when 5 centimeter, just a minute, at y is equal to 12 centimeter, velocity is 5 centimeter per second. Okay, and velocity is 12 centimeter per second, velocity is 12 centimeter per second at y is equal to 5 centimeter. Just okay, now calculate the amplitude, frequency and the time period. Okay, so यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिया हुआ है दोनों पॉइंट में। यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और यू कैन से एक्स स्क्वायर। ओके, इफ यू कंसीडर डिस्प्लेसमेंट एज एक्स, देन दिस बिकम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, now here we consider y, so velocity v1 omega into a square minus y1 square, v2 is equal to omega into root over a square minus y2 square। so यहाँ पे देखो v1 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 is equal to omega into root over a square minus y1 square, and y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, so 12 square। यहाँ पे अगेन v2 का वैल्यू कितना है, 12 है, यहाँ पे ओमेगा रह जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से तुम इजीली ओमेगा और a का वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें ओमेगा भी मिल जाएगा, इस दोनों इक्वेशन से तुम्हें a भी मिल जाएगा। सो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, सो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा करने से। ओके, सो टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी भी मिल गया एंड ए भी मिल गया। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बोला मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर बोले तो यहाँ पे ओमेगा बाय 2 पाई करने से तुम्हें लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाय ओमेगा कर दो, मिल जाएगा। और एम्पलीट्यूड तो इजीली मिल जा रहा है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से। ओके, ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। सो व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? सो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? देखो, मान के चलो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एक सिंपल पेंडुलम, ये रहा हमारा सिंपल पेंडुलम, एंड यू नो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज 2 पाई रूट ओवर L बाय G। ओके, सो ये रहा हमारा सिंपल पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर ये सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन फ्री स्पेस में ना होके एक विस्कस लिक्विड में हो जाए, ओके, एक विस्कस लिक्विड में इस सिंपल पेंडुलम को दे दे, देन इसका जो ऑसिलेशन है ये ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज करते करते इसका ऑसिलेशन ऑफ हो जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब कोई भी ऑसिलेशन में अगर एक डैम्पिंग फोर्स आ जाएगा, देन उस ऑसिलेशन को हम डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है यहाँ पे विस्कस फोर्स। अगर हम एयर मीडियम में ले ले तो एयर मीडियम में एयर का विस्कस फोर्स आ जाएगा, वाटर में जाएंगे तो वाटर का विस्कस फोर्स आ जाएगा, कोई भी डेंस लिक्विड में जाएंगे तो उसमें उसका विस्कस फोर्स आ जाएगा। सो अगर सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम छोड़ के अगर कोई मास, कोई स्प्रिंग मास सिस्टम भी ले ले, देन
ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, यहाँ पे अगर रफ सरफेस होगा, यहाँ पे अगर रफ सरफेस होगा, देन ये रफ सरफेस एक्चुअली डैम्प्ड ऑसिलेशन करवा देगा इसको, बिकॉज दिस ड्यू टू दिस रफ सरफेस द ऑसिलेशन द मास लॉसेस एनर्जी ग्रेजुअली एंड दैट्स व्हाई ऑसिलेशन थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो यहाँ पे अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करें तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें डैम्प्ड फोर्स रहेगा। ओके, डैम्प्ड फोर्स और यहाँ पे जो डैम्प्ड फोर्स है, ये डैम्प्ड फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इस मास का हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, ओके, कोई भी मास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम इनिशियली डैम्प्ड ऑसिलेशन का सिंपल इक्वेशन निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन मान के चलते हैं डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, यह रहा हमारा फोर्स। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों फोर्स है, क्या क्या दोनों फोर्स क्या क्या है यहाँ पे। एक तो स्प्रिंग का y डिस्प्लेसमेंट होने से यहाँ पे के वाई एक रेस्टोरिंग फोर्स आएगा। ओके, और एक फोर्स आ गया, वो क्या है, वो है डैम्प्ड फोर्स। डैम्प्ड फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ओके, एंड एज दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो also we will have a negative sign here, we will have a negative sign here. So beta dy dt, okay, and beta dy dt is actually velocity dependent force. So यहाँ पे देखो, mass into acceleration is equal to net force. Okay, mass into acceleration, इसका जो displacement है, acceleration है, इस तरफ अगर acceleration होगा, then y बन जाएगा इस तरफ, एंड ये बीटा जो है वो भी इस तरफ होगा, बिकॉज यू नो मोशन के ऑपोजिट में ही डैम्प्ड फोर्स आएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन जिस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द इक्वेशन m d square y dt square plus beta dy dt plus ky is equal to 0. Okay, now d square y dt square plus beta by m dy dt plus k by m into y is equal to 0. एंड यहाँ पे जो बीटा बाई m है, इसको हम डैम्पिंग फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे d square y dt square plus 2b dy dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन। और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 2 बीटा बाई m, इसको हम डैम्पिंग फैक्टर बोलेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से हमें तीन टाइप का आंसर मिल सकता है। ओके, तीन टाइप का आंसर मिल सकता है, सॉल्व करने से तीन टाइप का आंसर मिलेगा। सो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1, अगर ये जो b है, b अगर लेस देन ओमेगा होगा, b अगर लेस देन ओमेगा हो जाएगा, देन हमें जो मोशन मिलेगा वो क्या है b अगर लेस देन ओमेगा मिल जाएगा, देन हमारा जो मोशन है वहां पे हमें ऑसिलेटरी एक मोशन मिलेगा। b अगर लेस देन ओमेगा बन जाएगा तो वहां पे हमें ऑसिलेटरी मोशन मिलेगा। एंड दिस ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा। कैसे, देखो, अगर स्टार्ट होगा ऐसे, देन ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड ऐसे घटता रहेगा। एंड ये जो डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड होगा ना, ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विथ टाइम। सो at इज इक्वल टू a नॉट e टू डी पावर माइनस bt, ये रिलेशन फॉलो करके ये डिक्रीज करेगा। एंड इस मोशन को हमें ऑसिलेटरी मोशन ही बोलेंगे। एंड यहाँ पे हम y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा
y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a नॉट e टू दी पावर माइनस bt इंटू cos ओमेगा स्टार t माइनस फाइव। ओके, यहां पे जो ओमेगा स्टार है, इस ओमेगा स्टार का वैल्यू कितना होगा? ये ओमेगा स्टार है, ओमेगा स्टार का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड मिलेगा। वो टाइम पीरियड कितना होगा? वो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तभी हमें नॉर्मल ऑसिलेशन का जो टाइप है वो हमें मिल सकता है। ओके, यहाँ पे और एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो है a इज इक्वल टू e टू डी a t इज इक्वल टू a नॉट e टू डी माइनस बी टी, इसको अगर ठीक से हम एनालिसिस करें देन हमें एक रिलेशन मिलेगा। लॉग ले लेते हैं बोथ साइड का, a ऑफ t इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस बी टी। तो यहां से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ln a t मिलेगा और यहाँ पे हमें टाइम मिलेगा, देन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे। ओके, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ln a नॉट एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ln a नॉट बाई b। ओके, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे जो वैल्यू है ln a t का वो वैल्यू 0 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी भी आता है क्वेश्चन में। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टाइम पीरियड तो हमें मिल गया, तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी उसको हम nd बोलेंगे, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बन जाएगा हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलेंगे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये रहा केस 1। अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज में, उसको हम बोलेंगे लॉग डिक्रीमेंट। तो ये लॉग डिक्रीमेंट क्या है? यहां पे देखो, ये जो a t इज इक्वल टू a नॉट e टू दी पावर माइनस बी टी है, यहाँ पे जो a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है मतलब a t डिवाइडेड बाय a नॉट, ये इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस बी टी है। ओके, e टू दी पावर माइनस बी टी है। यहाँ पे ये जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू हमारा अगर हम यहाँ पे टाइम का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है वो t बाई 4, मतलब टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 4, मतलब 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड अगर लेके चले, देन हमारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का एक रेशियो मिलेगा a1 बाई a2, a2 बाई a3, ऐसे एक रिलेशन मिलेगा। एंड इस रिलेशन में हमें an-1 डिवाइडेड बाई an तक हमें एक सेम ही वैल्यू मिल जाएगा। वो क्या है? वो है e टू दी पावर प्लस bt, कैपिटल T। यहाँ पे कैपिटल T क्या है? कैपिटल T हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड है। ओके, कैपिटल T हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ पे जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। एंड इसी को हम कहेंगे लॉग डिक्रीमेंट। ओके, इसी को हम कहेंगे लॉग डिक्रीमेंट। मतलब यहाँ पे अगर ये जो रेशियो है, इस रेशियो मतलब यहाँ पे मान के चलो कि an डिवाइडेड बाई an प्लस 1 ले ले। ओके, an डिवाइडेड बाई an प्लस 1 ले ले, यहाँ से हमें मिल जाएगा e टू दी पावर b इंटू कैपिटल T। अगर बोथ साइड का लॉग ले लेते हैं an डिवाइडेड बाई an प्लस 1, देन हमें क्या मिल जाएगा? b इंटू कैपिटल T। ओके, b इंटू कैपिटल T, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। ओके, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। इस लैम्डा को हम बोलेंगे लॉग डिक्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। व्हाट इज लॉग डिक्रीमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पे nth एम्पलीट्यूड एंड n प्लस 1 जो एम्पलीट्यूड है, इन दोनों का हमें रेशियो मिल जाता है, इन दोनों का हमें रेशियो मिल जाता है। ओके, नाउ केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 है b ग्रेटर देन ओमेगा। सो b ग्रेटर देन ओमेगा होने से
जो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे ओवर डैम्प्ड मोशन। ओवर डैम्प्ड मोशन, ओवर डैम्प्ड मोशन में क्या होता है, ओवर डैम्प्ड मोशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज करता है, ऐसे डिक्रीज करता है। ओके, नाउ अनदर केस आएगा, केस 3, b इज इक्वल टू ओमेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन। सो क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन के लिए ऐसे बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे y मोस्ट रैपिडली डिक्रीज करेगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, सो b ग्रेटर देन ओमेगा होने से हमें ओवर डैम्प्ड मिल जाएगा, b लेस देन ओमेगा से हमें मिल जाएगा ऑसिलेटरी, एंड b इज इक्वल टू ओमेगा से हमें क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन मिलेगा। ये रहा हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड। सो ये है क्रिटिकली डैम्प्ड और ये रहा हमारा ओवर डैम्प्ड। ओके, आई थिंक क्लियर। ओके, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर हो गया। अब ऑसिलेशन में हमारा कुछ सर्किट का भी ऑसिलेशन आता है, जैसे कि एलसीआर सर्किट का ऑसिलेशन, एलसी सर्किट का ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन का टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ डिस्कस किया ऑसिलेशन का, बेसिक एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑसिलेशन का जो बाकी जो रह गया, कोई कुछ न्यूमेरिकल्स एंड एसएचएम इन एलसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंपैरिजन हम करेंगे बेसिकली, एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन डेफिनेटली लाइक करो एंड शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो का रिस्पॉन्स के ऊपर बेस करके मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। देन थैंक यू, share and subscribe।